जय हिंद। वेलकम टू विजडम। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री जहां से 12 to 15 क्वेश्चंस एवरी ईयर यू कैन सी इन बोथ द पेपर्स, इवन इन द CDS और इन द CAPF पेपर, and that will be very crucial for your examinations. Here we will discuss the colonial advent of European powers in India. So in this lecture we will discuss arrival of Europeans, especially in this, when they came to India and what was the purpose. So if we talk about Europeans coming, so coming of Europeans, so first came Portuguese in 1498, then second English 1600, then Dutch 1602, then Dutch, then Danish, Denmark 1616, and then French came in 1664, and the last comer was Swedish in 1731. But it is based on the time. But in case on the basis of company establishment, first came Portuguese, then Dutch, then English, and then after Danish, and then France, French, and Swedish. This is what the sequence. That is very important. This will come in your paper definitely. So now let's discuss what is the nature of European adventures. So basically colonial advent of Europe's. This is what our topic. So here we will discuss that India had contact with Europe from time immemorial to land route and partial sea route. Initially हमें थोड़ा सा एक्सेस था लैंड रूट से. Here you can see India. So ये एक्सेस था पहले, पार्शियली एक्सेस था, लैंड रूट से ट्रेड वगैरह हुआ करता था, एंड सी रूट का भी पार्शियल एक्सेस था, जो कि ये चलता था, ये रूट हुआ करता था, ऐसे जाया करता था यूरोप. But by the time discovery of sea route happened, and it was the far-reaching consequences on the shape and course of Indian society and history. So basically it has very important role that played the discovery of sea route. So now first to arrive, we have discussed, first to arrive in India as traders was Portuguese, then followed by Dutch, English, Danish, and French. So here we will discuss. Now this is the part of transformation of India. So social shift. What was the reason when they came? When the sea route was discovering, the social transition, social shift happened. Transition from feudalistic society. Society was very feudalistic, conservative in nature, and exclusive social system that converted into the capitalistic, progressive, and inclusive social system. That was one of the important shift, societal shift. Then the new ideologies came when the outcomers came to India. जैसे दिक्कूज बोलते थे, बिरसा वाले, outsider. So new ideologies, basically period based on self assertion,
introspection and external stimuli of ideas like equality. लोगों के मन में ये सवाल आने लगा, इक्वालिटी भी होती है, लिबर्टी भी कुछ होती है, फ्रेटर्निटी भी कुछ होती है. These were new ideologies, and then the political rule started, that is establishment of people's rule instead of one man rule, and that is democracy from monarchy. That was the very important part of the transformation period. Now we will discuss one by one Portuguese arrival. So first of all, we will discuss here. So one of the important things in Portuguese, there was a spirit of adventures led by the geographical discoveries. So basically people has a spirit of adventure, especially in terms of seafaring. So then primary objective was earning profit from the trade. So they started doing seafaring in different locations. And the secondary objective was to promote Christianity in Eastern countries. That was the secondary motive. So what happened? Prince Henry, he was a navigator, first Portuguese ruler, who promoted seafaring activities very much. But after his death, the second king came John II. जब ये जॉन सेकेंड आता है, सो ये फर्दर क्या करता है, प्रमोट करता है. जस्ट लेट मी चेंज द कलर. यस, further promoted seafaring activities. Seafaring activities. Seafaring. And then during his reign, Bartholomew Diaz, Bartholomew Diaz, they crossed the Cape of Good Hope. We will see here. Yes, you can see. This is what the region of Portugal, and this is the Spain part, and this is the entire Europe. So यहाँ से क्या हुआ, seafarer Bartholomew Diaz started seafaring and reached to the Cape of Good Hope, this location, till this location. यहाँ तक ये पहुंचे, इसके आगे ये नहीं आ पाए. And he discovered the Cape of Good Hope. So basically here you can get question, who discovered the Cape of Good Hope? So Cape of Good Hope discovered by Bartholomew Diaz. You can write. And then what happened in the history? See, यहाँ जो था सी फेयरिंग एक्टिविटीज को लेके काफी प्रमोशन चल रहा था. तो जो प्रिंस हेनरी था वो काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे थे. तो इन लोगों के पास जो था ना, नेविगेशन को लेके काफी स्पिरिट भी था. और दूसरा रीजन ये था कि इन लोगों के पास शिप वगैरह अच्छा खासा था. शिप डेवलपमेंट काफी स्पेन में काफी ज्यादा होता था. तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि जो ईस्टर्न वर्ल्ड होगा वो ईस्टर्न वर्ल्ड की ओर, कुछ लोग ईस्टर्न वर्ल्ड की ओर जाएंगे, तो जो पुर्तगीज होंगे वो ईस्टर्न वर्ल्ड की ओर जाएंगे, ईस्टर्न साइड जाएंगे, और जो स्पेन वाले सी फेयरिंग करेंगे वो वेस्ट साइड जाएंगे अटलांटिक ओशन से, इस लोकेशन से. And then they came to the Bartholomew Diaz came to the this point, southern tip of the South Africa, and then this route is came to be known as the Cape of Good Hope. Then after during the reign of King Emmanuel, अब नेक्स्ट जो रूलर हुआ था किंग इमैनुअल. हियर यू कैन सी Bartholomew Diaz crossed the Cape of Good Hope and discovered by him. And then Vasco da Gama started his voyage in 1497 AD during the regime of King Emmanuel. And in May 1948 he landed at the coast of Calicut. And when he landed at the coast of Calicut,
he was cordially received by Jomorin, the king of Kerala, and he welcomed. You can see the picture. उन्होंने क्या किया, काफी अच्छा इसका स्वागत किया. And when Vasco da Gama returned, he carried huge cargo and made huge profit on that. And then he again visited India in 1501 and then returned in 1503. Now important trading center that opened by the Portuguese, that was Calicut. Location was Calicut, Cochin and Connor. These were three important locations. Now let's talk about the Portuguese expansion. So Francois de Almeida, he was the first Portuguese governor, you can say Portuguese viceroy. 1505 से 1509 तक रहता है और ये स्टार्ट करता है, फर्स्ट गवर्नर होते हैं पुर्तगीज गवर्नर और पुर्तगीज वाइसराय. इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करता है एंड इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि मेक पुर्तगीज द सुप्रीम पावर इन इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी. एंड इन्होंने स्ट्रेटजी बनाता है कि डेवलप करता है स्ट्रॉन्ग नेवल पावर्स थ्रू नॉट फुल्ली सक्सेसफुल इन हिज एस्पिरेशन. ऑफ कोर्स ये पूरा का पूरा सक्सेसफुल नहीं होता है, बट इसका इंटेंशन ये रहता है. अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, एक टाइप का कार्टेज सिस्टम हुआ करता था. इसके अंदर एक कार्टेज सिस्टम हुआ करता. अब कार्टेज सिस्टम में क्या होता था? तो बेसिकली ये जो था एक टाइप ऑफ लाइसेंस हुआ करता था. एक टाइप ऑफ लाइसेंस हुआ करता था और अगर ये कोई अगर कार्टेज सिस्टम अगर कोई नहीं लेता है, कोई लाइसेंस नहीं लेता है, तो उस कंडीशन में कोई अगर ट्रेडर है जो ये कार्टेज सिस्टम नहीं खरीदता है, तो उस कंडीशन में क्या करता था? सो दे कॉन्फिस्टिकेटेड देयर कार्गोज. क्या करता था? तो उसके कार्गोज को क्या करता था? कॉन्फिस्केट कर लेता था, यानी कि सीज कर लेता था, सिंपल समझिए. नाउ देन उसके बाद आता है अल्फोंसो डी एल्बुकर्क, सेकंड गवर्नर. ही वाज कॉल्ड द रियल फाउंडर of the Portuguese because he is considered the real founder of the Portuguese power in India. And in 1510, why? क्योंकि इन्होंने क्या किया? conquered Goa from the ruler of बीजापुर. 1510 में वो क्या करता है? बीजापुर को क्या करता है? जीत लेता है, यानी कि बीजापुर के रूलर से वो गोवा जीत लेता है. एंड यही गोवा है जो लेटर ऑन 1961 में इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम द पोर्टुगीज. And then he also conquered Hormuz in the Persian Gulf. ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहा है, यहाँ है. दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ हॉर्मुज. हियर ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज. यहाँ से पूछ लेगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है. यहाँ पे होता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर. स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज. State of Hormuz. Now let's come to the next part. So now this was the Arabian traders in India influenced, and then administration impact. If we talk about the capital shift, Ninna da Kunha conquered Diu and Basin in 1534. निन्ना द कुन्ना जो था वो बेसिकली जो था वो थर्ड गवर्नर था, थर्ड पुर्तगीज गवर्नर था. वो क्या करता है? तो 1534 में 38 में ये द्यू और वसीन को जीत लेता है एंड देन ट्रांसफर करता है कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा. एंड देन कैश क्रॉप्स की बात करें तो दे इंट्रोड्यूस कैश क्रॉप, प्रमोटेड द कैश क्रॉप्स इन इंडिया लाइक कॉटन, स्पाइसेस, टोबैको, कैश्यू एक्सेट्रा. एंड ट्रेड मोनोपोलीज, it was controlled key sea lanes of trade and imposed system to dominate the spice trade across the Indian Ocean, so that they were did. Now डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो सेकेंड था, यहाँ देख सकते हो VOC,
डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि सेकेंड अराइवल था, एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 1602 एज अ चार्टर्ड कंपनी फ्रॉम द नीदरलैंड। डच कहाँ से थे? नीदरलैंड थे। मेजोरिटी जो इंटरेस्टेड था इनमें इसका था वो स्पाइस ट्रेड में था। दे ओपन हाउस वेयर हाउसेस, वेयर हाउस मतलब गोडाउन, इन पुलिकट, कैम्बे, सूरत, आगरा, हरिहरपुर, पटना एंड ढाका। हरिहरपुर इज वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन था यहाँ इसका, डच का। एंड देन इनके पास जो था वेरी स्ट्रॉन्ग, इनका जो सेटलमेंट था वो काफी स्ट्रॉन्ग था इंडोनेशिया में। इवेंचुअली वाइंड अप इंडियन बिजनेस टू फोकस देयर, और फाइनली उन्होंने क्या किया, इंडिया से बिजनेस बाइंड अप कर लिया क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा राइवलरी शुरू हो गई थी। देन आपको बात करेंगे डेनिस का, तो they formed in 1616 from Denmark and trading center at Travancore, तमिलनाडु में इसका ट्रेडिंग सेंटर था। If we talk about the श्रीरामपुर जो बंगाल में है, was the hub of the Christian missionary activities, इस टाइम तक हो गया था। 1799 में रेवरेंड विलियम कैरी क्रिएटेड अ प्रिंटिंग प्रेस फॉर द बाइबल, प्रिंटिंग ऑफ बाइबल, ताकि ये क्या कर सके, क्रिश्चियनिटी को क्या कर सके और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके। एंड इन 1819 श्रीरामपुर कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया था ऑन द वेस्टर्न स्टाइल फॉर हायर एजुकेशन। एंड इन 1845 डेनमार्क गेव टेरिटरी टू द ब्रिटिश एंड वाइंडेड अप, और फिर 1845 में वो क्या करता है, अपना टेरिटरी जो है ब्रिटिश को दे देता है। नाउ हियर वी विल डिस्कस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरी डिस्कशन में, इंग्लिश और फ्रेंच। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि क्रिएट तो हो गया था 1599 में ही, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिएट तो हो गया था 1599 में ही, बट ऑन 31st दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ गेव रॉयल चार्टर फॉर 15 ईयर्स, 15 साल के लिए इसको रॉयल चार्टर देता है कि जाओ और ट्रेड करो। सर विलियम हॉकिंस जो एनवॉय होते हैं रिसीव सम कंसेशन इन इंडिया, जो कि वो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं और उसे कुछ एक कंसेशन मिल जाता है। एंड देन he established their warehouses at सूरत एंड मछलीपट्टनम। अब क्या होता है कि इसको मछलीपट्टनम में ट्रेड का मिल जाता है, वो यहाँ से ट्रेड करना शुरू करता है, अपना फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर देता है। बट बाय द टाइम और क्या बोलते हैं, जहांगीर का मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, फिर कुछ दिनों के लिए इसको बैन कर देता है। बाद में चल के फिर इसको 1615 में मिलता है। हॉकिंस ग्रांटेड 500 मनसबदार पोजीशन बाय जहांगीर, लेटर रिवोक्ड, इसको पोजीशन भी मिलता है 500 मनसबदार का, लेकिन बाद में इसको वापस ले लिया जाता है, कंसेशन को रिवोक कर लिया जाता है जहांगीर के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसके कोर्ट की जो होता है उसका प्रेशर हो जाता है जहांगीर के ऊपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रिटिश एक्सपेंशन। अब क्या होता है, 1615 में थॉमस रो आता है और वो जहांगीर के कोर्ट में विजिट करता है और उसे मिल जाता है फुल ट्रेडिंग कंसेशन, और फिर वो एस्टेब्लिश करता है ट्रेडिंग सेंटर एट आगरा, अहमदाबाद एंड बरूच। और फिर इसी ड्यूरेशन में 1639 में वो क्या करता है, अपना एक सेंटर बनाता है जिसका नाम है सेंट फोर्ट जॉर्ज। कहाँ बनाता है? मद्रास में, 1639 में। एंड देन वहां ये बनाता है, कुछ विलेज को लीज पे लेता है और फिर वहां पे ये बनाता है सेंट फोर्ट जॉर्ज। एंड देन इन 1661 आइलैंड ऑफ बॉम्बे जो होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्रिटिश मोनार्क को एज अ डॉरी। डॉरी ऐसा नहीं आज ही चल रहा है भाई, फ्रॉम पुर्तगीज प्रिंस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। यहाँ पे होता क्या है, पुर्तगीज प्रिंसेस कैथरीन और ब्रिगेंजा की शादी होता है किससे? तो चार्ल्स सेकेंड से, प्रिंस चार्ल्स सेकेंड से। यू कैन राइट, सॉरी, चार्ल्स सेकेंड। और फिर इसके बाद ये जो है आइलैंड ऑफ बॉम्बे ट्रांसफर कर जाता है ब्रिटिश को एज अ डॉरी। कौन? पुर्तगीज। नाउ फोर्टिफिकेशन की बात करें तो 1668 में बॉम्बे ट्रांसफर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर नॉमिनल प्राइस ऑफ 10 पाउंड। अब ये जो डॉरी में मिला था उसको, प्रिंस चार्ल्स सेकेंड को, वो क्या करता है, ये 10 पाउंड के
प्राइस पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। एंड देन इन 1698 विलेज, 3 विलेज गोविंदपुर, सुतानती एंड कलिकता कंबाइंड करके किया जाता है और वहां पे बनाया जाता है सेंट फोर्ट विलियम्स एट कलकत्ता 1700। नाउ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आता एस्टेब्लिश होता है 1664 में एज अ स्टेट कंट्रोल्ड कंपनी, और अनलाइक ईस्ट इंडिया कंपनी वाज प्राइवेट। क्यों? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होता है वो प्राइवेट कंपनी है, तो हमेशा प्राइवेट चीजों में ज्यादा डेवलपमेंट होता है, ज्यादा काम होता है, और गवर्नमेंट जो होता है वो थोड़ा सा स्लो रहता है। ट्रेडिंग सेंटर अगर इसका बात करें तो सूरत 1668 में बनाया था, मछलीपट्टनम 1669 में, पौंडीचेरी 1673 एंड चंद्रनगर 1690 में बनाया था। नाउ स्टेट द स्ट्रेटजी ऑफ एम्पायर। सो जोसेफ फ्रैंकिस डुप्लेक्स ये था क्या? तो फ्रेंच गवर्नर था। 1740 में क्या करता है, स्टार्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरफियरिंग इन द इंटरनल पॉलिटिक्स, और यहाँ से राइवलरी शुरू होता है जब ये लोग इंटरनल पॉलिटिक्स में एंटर करने लगता है। एंड व्हाट वाज द पॉलिटिक्स ऑफ नेटिव प्रिंसेस? उस टाइम पे क्या था? द ब्रिटिश स्टार्टेड टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द नेटिव किंगडम एंड इट इज द ब्रिटिश हु मास्टर्ड दिस स्ट्रेटजी टू एक्सपेल फ्रेंच फ्रॉम इंडिया। और फिर इस स्ट्रेटजी को ब्रिटिश इतना अच्छे से करता है कि फ्रेंच को फाइनली भगा देता है, एंड दे इमर्ज एज द ओनली इंपीरियलिस्ट पावर इन इंडिया। दैट वाज द स्ट्रेटजी ऑफ एम्पायर। सो this is what from my side. I think we have covered all important points that will definitely come in your paper, and जो कुछ भी हमने डिस्कस नहीं किया है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आ सकता है, बट मैंने हर वो इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस किया है जो आपको पता होना ही चाहिए। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं जो मैंने मिस किया है, तो बैटल ऑफ चिंसूरा मिस किया मैंने। बैटल ऑफ चिंसूरा जो कि हुआ था 1759 में। इसी को बैटल ऑफ बिदेरा भी बोला जाता है। बैटल ऑफ बिदेरा ये हुआ किसके बीच था? तो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था, क्योंकि राइवलरी शुरू हो गई थी। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट बात करें जो कि मैंने एज ए ट्रेडिंग नहीं बात की थी, तो 1611 में ब्रिटिश ने टेम्पररी अपना एक फैक्ट्री बनाया था, टेम्पररी एट मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम। और अगर परमानेंट फर्स्ट फैक्ट्री की बात करें ब्रिटिश का, तो बनाए थे 1613 में सूरत। और 1615 में थॉमस रो आया था, उसके बाद तो कंप्लीट मिल गया था उसको ट्रेडिंग राइट्स। देन आई थिंक वी हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। अगर हम बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रिंटिंग प्रेस से था, मैंने डिस्कस किया था कहीं पे, प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश किया बाइबल को प्रिंट करने के लिए। सो दैट यस हियर। सो यहाँ से आप एक चीज और याद रख सकते हो, लेट मी राइट हियर। यस, यहाँ से एक चीज और याद रखते हो कि जो गोवा में है द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जो कि कहाँ है? तो गोवा में है। यहाँ पे जो सेंट फ्रैंकिस जेवियर है, सेंट फ्रैंकिस जेवियर, इसके मोर्टल्स को रखा गया। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इफ यू गाइज वांट टू रिमेंबर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप बैटल ऑफ सवेली याद रख सकते हो, जो कि 1612 में हुआ था। इसके बाद अगर आप
आपको कुछ और चीज याद रखना हो तो आई थिंक दैट इज सफिशियंट। सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वाचिंग, and if you find it useful and interesting, then do like and share and subscribe to my channels. And if you want to get the PDF of this class, then you can join our Telegram channel, that is Wisdom Defense. And if you want to get the link of that channel, you can go to the description of my channel, and where you will get the direct link for Telegram. So that's all from my side. Thank you. Jai Hind.